Hello everyone, welcome to another class. Today's class is so important and you will say sir, this class you have brought that means I will to top in what exam? Can you guess after seeing the picture in our screen? I hope you have guessed that. That is your National Science Olympiad guys. So आप जानते हैं कि मेरा बहुत सारा स्टूडेंट नेशनल साइंस ओलंपियाड देते हैं फ्रॉम वेयर फ्रॉम माय वीडियोस ओनली दे हैव टू प्रिपेयर जो वीडियोस नहीं दिया है जस्ट थोड़ी रीड द बुक गाइस बिकॉज सारा तो मेरे लिए ये कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है and that is your task guys, that is your challenge, that how fast you can complete your whole book, how fast you can complete your whole book. That is your challenge for your national science olympiad. National science olympiad. Now I hope you guys have a little idea of national science olympiad. Now, this National Science Olympiad, also known as NSO, NSO is a part of which that is a part of any international Olympiad. We say it's a part of international Olympiad, guys. International Olympiad. हाँ guys, नाम नेशनल है पर काम इंटरनेशनल करता है पूरे इंडिया की तरह. करेक्ट. तो NSO full form I am again telling national, let me shorten this, yes, National Science Olympiad. That will be like National Science Olympiad है and that is a international base exam. What exam guys? International based exam. Ah. Now, if you stand first, second, third in international basis, then only you will get a medal. Or else, or else you will get every time a certificate. Only you have to top in international basis. That is one medal you will get, and that medal is very much of price. So that is of international. You have topped it international basis. Okay. Now, one more Olympiad let me introduce, that is Silver Zone. Many of you have given name in this also. These are the main two Olympiad that works in our India. This is also an international basis. पर जैसे ये मेडल देता है एसओएफ, ये क्या किया है बहुत टफ का होने के लिए और बच्चों को इंटरेस्ट करने के लिए क्लास वाइज एक क्लास में बहुत सारा स्टूडेंट होता है, उस क्लास वाइज फर्स्ट सेकेंड थर्ड को वो मेडल दिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्हें 10,000 रुपीज दिए, national वाइज इंडिया वाइज दे गिव 20,000 रुपीज and in the international wise they give you 50,000 rupees along with medal is also there, certificate is also there. बस सिर्फ क्लास में होने के लिए सिर्फ मेडल मिलता है, सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, उसके बाद प्राइज मनी होता है. दैट इज ए सिल्वर जोन आइडिया एंड दैट इज एनएसओ आइडिया. क्लियर? आई होप द बेसिक आइडिया इज क्लियर. जब अगर आप एनएसओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज इक्विवेलेंट टू योर प्रिपेयरिंग फॉर सिल्वर जोन. मीन्स एनएसओ अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका सिल्वर जोन भी प्रिपेयर ऑटोमेटिकली हो जाएगा. अगर आप सिल्वर जोन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका एनएसओ ऑलरेडी प्रिपेयर हो जा रहा है. These are equal. These are equal level based exam.
नाउ अगर एक प्रॉब्लम होता है कि मेनी ऑफ यू आपका दादा दीदी के पास सिल्वर जोन का बुक है और सिल्वर जोन का बुक है, पर आप एग्जाम दे रहे हो एनएसओ, आप सिल्वर जोन का बुक यूज कर सकते हो? ऑब्वियसली कर सकते हो, क्योंकि मैंने बोला कि एनएसओ इज इक्वल टू सिल्वर जोन। सेम वे, अगर आपके पास एनएसओ का बुक है और आप इसका परीक्षा देने वाले हो, यू आर गिविंग silver zone, then also that is your okay. But अगर NSO 1 है, सिल्वर जोन 1.5 है, ये 0.5 का डिफरेंस है सिल्वर जोन के ओलंपियाड के लिए बस। मतलब I will recommend those who are giving NSO to take silver zone book, but those who are giving silver zone don't take NSO book, take silver zone book only. Okay, बिकॉज वो 0.5 विल बी रिजल्टिंग अ ह्यूज लॉस, क्योंकि वो 0.5 आपका एनएसओ नहीं है, एनसीईआरटी नहीं है, क्योंकि एनएसओ बेस्ड होता है एनसीईआरटी के वजह से, और सिल्वर जोन बेस्ड होता है एनसीईआरटी तो होता ही है, प्लस प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्लास 10 का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो सकता है, क्लास 10 का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो सकता है, क्लास 10 का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो सकता है। सो टीचर शुड बी समवन हु कैन टीच क्लास 10, देन ओनली they can teach you class 8 olympiad. Teacher should be someone who class 10 olympiad, those who can teach class 12, like that, because सिल्वर जोन थोड़ा हाई है, पर हम लोग इन्हें से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि मोस्ट मोस्ट स्कूल्स are appearing for NSO. Now, if heavy demand is there, if there is a heavy demand, like मुझे सिल्वर जोन का सैंपल पेपर सॉल्व करा दो, आई वांट सिल्वर जोन सैंपल पेपर टू बी सॉल्व्ड, अगर हेवी डिमांड हुआ फेसबुक में तभी, यूट्यूब में तो डिमांड नहीं होता उसके लिए भी, ओके दैट्स सेपरेट थिंग, बट अगर ह्यूज डिमांड हुआ इसो सिल्वर जोन के लिए, तो मैं सिल्वर जोन भी अवश्य लाऊंगा। क्या आप मेरे बच्चे हो? आप लोगों का कहना ही हम मुझे मानना है, मेरा कहना तो आपको मानना ही है, पर आपका कहना भी मुझे मानना है। सो लेट्स स्टार्ट क्लास 8 ओलंपियाड। ओके, देखिए, ये जो आपका सैंपल पेपर दिया है एनएसओ ने, वहां पर सिर्फ कितना क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। हाउ मेनी क्वेश्चन गाइस? 10 क्वेश्चन। पर आपका एग्जाम में कितने क्वेश्चन आने वाले जानते हो आप? कितना लिखा है देखो, 50 क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि देखो अगर हम लोग सैंपल पेपर मतलब आपका पैटर्न समझा देंगे, राइट, अगर हम सिल्वर जोन ऐसा पगलामी करके सारा 50 मार्क्स का ही सैंपल पेपर निकाले, 50 मार्क्स का ही सैंपल पेपर निकाले, तो सारा पैटर्न पता चल जाएगा, सब रिफाइंड फॉर्मूला याद कर लेंगे और कर लेंगे। That's why 50 is not there. Only 10 questions are there. That may be coming, that may not be coming. That type of question. पर आपका एग्जाम होने वाला है, आपका एग्जाम होने वाले 50 क्वेश्चंस। एंड ऑलवेज यूज गाइस, फर्स्ट आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे से याद रखना, एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट लॉजिक। अगर चैप्टर कॉन्सेप्ट फेल हुआ है तो लॉजिक को यूज करो, लॉजिक फेल हुआ है तो चैप्टर कॉन्सेप्ट का यूज करो, अगर दोनों फेल हुआ है तो उसे क्या मारोगे? तुक्का मारोगे। अगर दोनों फेल फेल हुआ है तो तुक्का मारोगे, पर तुक्का मारने का भी एक लॉजिक है, वो मैं सिखा दूंगा आपको इस क्लास में। सो मेनली दो चीज आपको करना है कि चैप्टर कॉन्सेप्ट लगाना है और उस लाइक रियल लाइफ लॉजिक लगाना है, रियल लाइफ लॉजिक लगाना है। इसके बिना कोई से किसी तरह से सॉल्व नहीं किया जा सकता। देखो 50 क्वेश्चन आएगा,
10 लॉजिकल क्वेश्चन होगा, इजी क्वेश्चन, 1 मार्क्स। साइंस मीन्स आपका बुक से, साइंस मीन्स आपका बुक से 35 क्वेश्चन आएगा जो कि 1 मार्क्स ईच होगा, और ये 1 मार्क्स ईच होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट विल कम अचीवर से 5 क्वेश्चन होंगे, वो 3 मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स। देखिए ये अचीवर सेक्शन जो है, यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिया है, मतलब यहाँ पर कितना मार्क्स का क्वेश्चन है, कैन यू टेल एनीवन? 10 क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चन इज अचीवर सेक्शन, दैट मीन्स 3 मार्क्स इंटू 2 6 मार्क्स, और 8 मार्क्स, 14 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। हियर इज 14 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, सो अचीवर सेक्शन में सब धात खा देते हैं। एवरीवन गत्ता कहाँ खाते हैं? एवरीवन कहाँ गत्ता खाते हैं? अचीवर सेक्शन में गत्ता खा जाते हैं। अचीवर सेक्शन में सबका अटक जाता है, राइट? कहाँ अटक जाता है? अचीवर सेक्शन। तो देखो, एक थिंग सोचो, टोटल मार्क्स कितना हुआ? टोटल मार्क्स इज योर, कैलकुलेट करके बताओ। मैं भी कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। देखो 10 मार्क्स एक क्वेश्चन का, मतलब 10 मार्क्स। 35 एक क्वेश्चन का, दैट मीन्स 45। और 5 3 मार्क्स का क्वेश्चन, दैट मीन्स 150 मार्क्स एग्जाम। 45 प्लस 15, not 150 guys, not 150, sorry, that will be approx 70 marks exam, because because 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन मतलब 10 मार्क्स है, राइट? 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है मतलब 10 मार्क्स है। लेट मी राइट हियर, सो 10 मार्क्स 10, 35 1 मार्क्स क्वेश्चन 35, और 5 मार्क्स क्वेश्चन। ये पहले इसको ऐड करो, कितना होगा? 1 मार्क्स क्वेश्चन यू विल गेट 45 1 मार्क्स क्वेश्चन, and then 3 marks question you will get, but all will be MCQ type guys, don't think that 3 मार्क्स है तो ब्रॉड क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। 70 मार्क्स, so full paper will be which type, you know? MCQ type, फुल पेपर विल बी MCQ type। now without a delay हम पूरा आपको समझा चुके कि मार्किंग स्कीम कैसे होगा। ओके, अब जैसे ही अचीवर सेशन का टाइटल देखोगे सतर्क हो जाना है कि अभी मुझे अपना दिमाग बहुत जोर का लगाना है। क्या बात, क्या बात? साइंस में कुछ नहीं है, समझा देता हूँ और एक बार। ये जो साइंस का पार्ट है, दिस विल कम फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। ये एनसीईआरटी के अचीवर एनसीईआरटी के चैप्टर आएंगे, पर वो हाई लेवल का क्वेश्चन होगा, हाई लेवल हॉट क्वेश्चन होगा। लॉजिकल डिजाइनिंग विल बी नॉट कमिंग फ्रॉम योर बुक, यू हैव टू यूज योर ब्रेन। सबसे ज्यादा ब्रेन यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, राइट? ना देखो सिलेबस, देखो सिलेबस कुछ नहीं है, पहला वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग में मैं समझा दूंगा कि कैसा होता है। उसके बाद ऑल चैप्टर्स, सेक्शन 2 साइंस में ऑल चैप्टर्स, और सेक्शन 3 में हॉट क्वेश्चन आएगा, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन आएगा, जो कि योर फुल चैप्टर विल बी देयर, फुल बुक विल बी देयर। सो एनसीईआरटी का फुल बुक रहेगा। ओके, सेक्शन 2 में आपका बुक से क्वेश्चन आएगा, सेक्शन 3 में थोड़ा हाई लेवल का बुक से, बुक का कॉन्सेप्ट लेकर ही क्वेश्चन आएगा, और सेक्शन 1 में आपका रीजनिंग होगा। देखते हैं, चलो। सो फर्स्ट क्वेश्चन, कैन यू सी? यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज टेलिंग, फर्स्ट क्वेश्चन इज टेलिंग
three positions. Three positions. Wait. Three positions of dice are shown to you. What number is opposite to one? यहाँ पर थ्री पोजिशन दिखा है, यहाँ पर 6 3 4। नाउ हमें पता है इसका आंसर क्या होने वाला है, किसको पता है? वेरी इजी इज द आंसर, 6। 6 होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर? वेट करो, थोड़ा इसे स्मॉल कर लेते हैं। इसका आंसर होगा 6। क्यों? क्यों 6? देखो, डाइस का ऑपोजिट साइड विल ऑलवेज एड अप टू 7। ये आपने पढ़ा था, ऑलवेज एड अप टू 7। लाइक 5 के ऑपोजिट में कौन सा साइड होगा? 2। तो 6 के ऑपोजिट में क्या साइड होगा? 1। ये आप चेक करना, मैं बोल रहा हूँ कि आप देख नहीं सकेंगे कि आप आपके घर में कोई डाइस है, डाइस का इस साइड देखना, उल्टा साइड देखना, देखना कि बोथ साइड, ऑपोजिट साइड विल बी एडिंग अप टू गिव यू 7, विल बी एडिंग अप टू गिव यू 7। ऑपोजिट साइड विल एडिंग अप टू गिव यू 7। ऐसे यहाँ पर 4 है, इसका ऑपोजिट साइड में क्या होगा? 4 के ऑपोजिट साइड में 3 होगा। क्या होगा गाइस? क्लियर आई गेस। आंसर नंबर डी इज आंसर। जस्ट एक लॉजिक लगाना था कि ऑपोजिट साइड, एक लॉजिक यहाँ पर लिख देते हैं, ऑपोजिट साइड x प्लस ऑपोजिट ऑफ x विल बी गिविंग ऑफ 7। यही लॉजिक अगर आप लगाते तो आपका लॉजिकल क्वेश्चन आंसर हो जाता। ये देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट इमेज। देखिए, ये आपको देखना है, मैं जानता हूँ इसका आंसर क्या होगा, पर फिर से देखते हैं। देखो, यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर हाफ सर्कल, हाफ फिल है, ए जे वाटर इमेज बोला है। वाटर इमेज का क्वेश्चन सॉल्व किए हो आप लोग कभी गाइस? टेल मी, वाटर इमेज का क्वेश्चन कभी सॉल्व किए हो? वाटर इमेज में उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वाटर इमेज क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, इट विल बी उल्टा। देखो, एक सिंपल फिगर हम लोग दिखा रहे हैं आपको, मैं अभी डाउनलोड किया। वेट, let me upload it here. Just a minute guys. Now everyone see, so this is the figure, if this is the figure, this is the opposite, मतलब अगर one is standing like this, one figure is like this, then how the water image will form? Matha will go here, here will, legs will come here, it will be opposite, full opposite. It will not like this, it will be like this. This is called as the water image. Clear? वैसे यहाँ पर वाटर इमेज क्या है? बी है। देखो, यहाँ पर है, ये उल्टा हो गया, यहाँ पर ये उल्टा हो गया, यहाँ पर ये उल्टा हो गया, यहाँ पर ये उल्टा हो गया, और सेम वे ये वाला जो क्रॉस है ये भी उल्टा हो गया है, ये क्रॉस भी क्या हो गया है? उल्टा हो गया है। क्लियर? 3 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इन द गिवन, यहाँ पर एडुकेटेड अनएडुकेटेड बोला है, और ये वाला है जो कॉन्फर्म्ड इन जॉब है, ठीक है, ये कॉन्फर्म्ड इन जॉब है। तो क्या है? बट वो represent a person who are educated and employed but not confirmed in job.
एडुकेटेड है, एम्प्लॉयड है, मतलब एजुकेटेड में यहाँ आएगा, मतलब इज एडुकेटेड और एम्प्लॉयड का मिडिल में, ये मतलब यहाँ कोई आने वाला है। तो मैं यहाँ पर हाईलाइट से ये मार्क कर देता हूँ कि एडुकेटेड और एम्प्लॉयड के मझखान में होना चाहिए। करेक्ट, एडुकेटेड और एम्प्लॉयड के मझखान में होना चाहिए। ये एडुकेटेड, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, दैट इज योर थिंग। ओके, नाउ बट नॉट कन्फर्म्ड इन जॉब, कौन सा पार्ट है गाइस, यहाँ पर देखो तो, जो इस ट्राइंगल के अंदर नहीं है, कौन सा नहीं है, पर येलो में लाई कर रहा है, कौन सा नहीं है? बी नहीं है, बी नहीं है, क्योंकि बी देखो ये एडुकेटेड भी है, एम्प्लॉयड भी है, पर इट इज नॉट कन्फर्म्ड इन जॉब। सिंपल क्वेश्चंस नाउ, bees are carrying honey with flapping frequency of 440 hertz, while those who which are carrying honey fly with a flapping frequency of 300 hertz. The sound made by bees which are not carrying high has a higher pitch. क्या होगा? Higher pitch. More frequency, more pitch. Hertz is the unit. Clear? The pressure of water near the bottom of the wall and a dam does not depend on the depth. Does not depend. Cross section area, density, atmosphere. बोलो, डेप्थ नहीं होगा, डेंसिटी, सॉरी डेप्थ होगा, आंसर नहीं होगा, डेंसिटी भी होगा, आंसर नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा, आंसर नहीं होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्या क्या होता है? विस्कोसिटी, डेंसिटी मतलब area that depends on atmospheric pressure and the depth. These three are the categories. Which Q is moisture for on a which will form this and this. That is a green coating, guys. That is a green coating that will form. Number C. Which of the following reads have been given a term that refer to sowing of the seed? सफेद करने के sowing the seeds manually, broadcasting. This one. देखो broadcasting. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट अ बैक्टीरियल डिजीज? क्या कोई बोल सकता है कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है? ना कैसे आइडेंटिफाई करना है, देखो, और नंबर डी है, हम देख सकते हैं। पर देखो मलेरिया हम लोग जानते हैं प्रोटोजोआ, ये तो बहुत इजी है, मलेरिया प्रोटोजोआ। तो अब इस और इस में कॉन्फ्यूजन आएगा, इस और इस में कॉन्फ्यूजन आएगा, मीजल्स कौन कौन सा वायरस, तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट वन। ओके, अनुज परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट to compare the strength of different objects shown. Arrange the threads in the order of their increasing thread. Increasing strength में इसको अरेंज करना है। I'm giving you 20 second time to think. सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग, strongest I am giving hint. Strongest is nylon. Now think. सिल्क स्ट्रॉन्ग होता है? जो आपका डाउट होगा वही मैं आपके ऊपर छोड़ दिया कि सिल्क ज्यादा होता है कि कॉटन। आप ये जानते हो नायलॉन होता है, इसलिए वो बोल दिया। टेल मी दिस क्वेश्चन आंसर, 9 नंबर क्वेश्चन, which will be the answer guys? You should give this answer. If you can give this one, I know you have read, I know you have read that chapter very goodly, that is your synthetic fiber and fabric. So yeah, I hope everyone have given option number C. Nylon is the greatest, then silk, then cotton. कॉटन रुई आप नहीं जानते, देन सिल्क, देन नायलॉन। नायलॉन सबसे ज्यादा हार्ड होता है, और मेनी ऑफ यू आर गिविंग ए, व्हाई ए गाइस? नायलॉन इज लेस, इट इज शोइंग लेस, but which order we want to show, which order we want to show?
but also increasing. So science will be which side? This side. And here will be the which value? Smaller value. Here will be the greater value. Nylon is smaller than silk. So fully false. So see which order it has told. Now refer the bacteria XYZ. ऐसा क्वेश्चन तो 3 स्टार लगा के रखो। तो 3 दिया जाएगा कि स्टेटमेंट दिया जाएगा कौन सा इनकरेक्ट है या करेक्ट है ये पूछा जाएगा। आने ही वाला है, मैं इतने बार मैं देख चुका हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आने ही वाला है। रेफर टू रीड द स्टेटमेंट्स 1 2 3 4। रीड द स्टेटमेंट्स 1 2 3 4 एंड देन टेल। ये क्या है पहले देखो, उसके बाद हमको बोलना है ये क्या है। चलो पहले देखो बैक्टीरिया, पहले इसका कौन सा शेप बोलो, ये क्या शेप है? ये कॉमा शेप है। ये क्या शेप है? और ये क्या शेप है? चलो आपको 20 सेकेंड देते हैं। चलो अगर आपको नहीं आ रहा है तो मुझे ही करना होगा। तो आपको राफ वर्क ऐसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल भी आने वाला है, तो उसके लिए यहाँ पर जो राफ वर्क की जगह है यहाँ पर आपको फुल न्यूमेरिकल करना है गाइस। ओके चलो ये जो मैंने लिख दिया, दिस इज द थिंग जो आपका आंसर हो सकता है। जो स्पेरिकल शेप होता है उसको कॉकी बोला जाता है, रॉड शेप को बेसिली बोला जाता है, स्पाइरल को स्पिरिलिया बोला जाता है, कॉमा को विवरियोस बोला जाता है, कॉक्सटिक ये आपका अभी का इस क्लास के लिए नहीं है, पर इसको क्या बोला जाएंगे? विवरियो बोला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? ये कौन सा शेप है? रॉड शेप है क्या? ये तो स्पाइरल शेप दिख रहा है मुझे, तो स्पिरिलियम है। ये है रॉड शेप, तो ये क्या होगा? बैसिलस होगा। करेक्ट। नाउ देखो बैक्टीरियम एक्स कैन कॉज द टाइफाइड। टाइफाइड कौन कौन सा है? विब्रियो कोलेरा, राइट। क्या कॉज करता है? विब्रियो कोलेरा क्या कॉज करता है? माय क्वेश्चन इज दैट विब्रियो कोलेरा क्या कॉज करता है? विब्रियो कोलेरा इज अ बैक्टीरिया, इट कॉजेज बैक्टीरियल डिजीज। हाँ तो देखो हमारा विब्रियो जो शेप है हमें एक ही पता है कि विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा कोलेरा कॉज करता है। इनफ इंफॉर्मेशन, इनफ। तो ये क्या टाइफाइड है? माय क्वेश्चन इज इज टाइफाइड? इट्स नॉट टाइफाइड गाइस, इट्स नॉट टाइफाइड। इट्स which digits? Cholera. Now let's see who caused typhoid. देखो हमने हमने लॉजिक यूज किया और बोल दिया, हमने अपना लॉजिक यूज किया और बोल दिया। देखो टाइफॉइड, टाइफॉइड salmonella, salmonella, salmonella is what? Salmonella, that is a बैक्टीरिया, वो भी बैक्टीरिया है, बट ये सैल्मोनेला ही हमारा ये टाइफाइड कॉज करता है। तो दिस विल बी अबाउट कॉज, ये आप जान चुके हो एक थिंग। ओके पर हमने लॉजिक यूज कर बोल दिया कि नहीं होगा ये। बैक्टीरियम वाई कॉज ए डिजीज विद डिजर्व प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैस। बैक्टीरियम वाई क्या है? स्पीलियम, स्पीलियम डिजीज विद डिजर्व प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैस।
ये आपको पता नहीं है आई गेस, से आप नहीं दे पा रहे हो। बैक्टीरियम जेड, जेड क्या है? बैसिलस। हाँ बैसिलस हमें याद है, बैसिलस याद है, सबको याद आ रहा है। बैसिलस में एक नाम बताओ तो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लैक्टोबैसिलस आपको याद आ रहा है, लैक्टोबैसिलस याद आ रहा है आप लोगों को, लैक्टोबैसिलस याद आ रहा है। ये क्या करते हैं? कार्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ कहा लिखा है लैक्टोज को इंटू लैक्टिक एसिड मींस कार्ड फॉर्म में, तो कहते करेक्ट स्टेटमेंट है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। एक्स कैन कॉज सर कॉलेरा। एक्स क्या है? एक्स क्या है? हाँ हाँ, अभी तो पढ़े पढ़ा, अभी तो पढ़ा कि वो विब्रियो कॉलेरा था। वो विब्रियो कॉलेरा जो बैक्टीरिया का नाम था, वही तो कॉलेरा कॉज करता है, वही तो कॉलेरा कॉज करता है। तो मतलब ये भी तो करेक्ट हो गया। तो 3 और 4 करेक्ट है। जहां पर ये 3 और 4 है, जहां पर ये 3 और 4 है, वो तो ऑप्शन आपका नहीं होने वाले। विच आर इनकरेक्ट 1 और 1 and 2। बैक्टीरिया वाई cause a disease which disrupts proper exchange of gases. So ये एक डिजीज कॉज करता है स्पिरिलियम बैक्टीरिया, दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये दोनों आपका एलिमिनेट हो गया था, तो ये आपको दोनों नहीं होने वाला है। तब इस दोनों में आप क्या करोगे? तुक्का मारोगे। इस दोनों में आप क्या करोगे? तुक्का मारोगे। आपको तुक्का करने का मतलब समझ गया कि आपको जान चुके कि 1 2 3 4 है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये सॉरी ये फॉल्स, ठीक है। ये आप जान चुके हैं, ये यहाँ हमें पता नहीं है। बोला कौन सा ट्रू है? तो पहला है 1, सेकेंड है 1 and 2, थर्ड है 1 2 3, और 4 है 1 2 3 और 4। तो बोला है कौन सा करेक्ट है? देखो ये तो गलत हो गया, क्योंकि 3 और 4 हमने फॉल्स लिख दिया, तो वो तो करेक्ट कदापि नहीं हो सकता। तो 1 और 1 and 4, 1 and 2 के ऑप्शन में ही होगा। तो यहाँ पर अब आपको तुक्का मारना कि जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, इसको मार देना है, 1 नंबर का आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। तुक्का मारने का प्रोसेस ही बता दिया। इस मेथड को कहा जाता है एलिमिनेशन। इस प्रोसेस को किया जाता है एलिमिनेशन। तो आई एम नॉट टेलिंग टू ऑलवेज गिव तुक्का, आई एम नॉट टेलिंग टू ऑलवेज गिव तुक्का, बट इफ यू आर नॉट गेटिंग, प्लीज रहने दीजिए, ऐसा मत कीजिए, तुक्का मार के आइए पर एलिमिनेशन के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर ओलंपियाड एग्जाम, होप टू मीट यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।